Karishma, you have a voice that speaks words of encouragement, a mind that thinks thoughts of optimism, and a heart filled with love and hope, and hands that help those in need. So, she is a linguistic development coach and has worked behind my daughter too. So, here we welcome Karishma Mehta, a linguistic development coach. Thank you. Yeah, as we have a linguistic coach over here, please can you tell us like what you teach in your classes? I cover all the aspects of language. Language means not only words and sounds, but to articulate correctly also, and to frame and structure the sentences correctly also. So I work on all the aspects of language. यहाँ पे phonics है, not only English phonics we have already heard about, but हिंदी भी है. हिंदी phonics है, फिर उसमें vocabulary है, grammar है, comprehensive creative writing है, spoken English है, correct articulation है, बहुत सारे aspects है, and it makes a fun out of it. Wow, we have a linguistic coach over here, and that too she has come all the way from Gujarat. So we are fortunate to have you over here. And I would like to ask you a few questions, Karishma. Like, what helps you go through each day of your life? Like, what is that driving force? See, my passion and my, maybe you can say, dedication for this particular word makes me feel energetic each and every time. मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे दिमाग में रहता है कि आज मैं बच्चों को ये कराने वाली. When I get up at 5 o'clock early in the morning, I'm totally free mentally. और उस टाइम पे मैं जब मेडिटेशन कर रही होती हूँ तब मेरे माइंड में सारे क्वेश्चंस के आंसर आ जाते हैं ऑलरेडी कि आज मैं किस तरह से किस पॉइंट पे कैसे वर्क करने वाली हूँ. So that makes my whole day successful. Wow. So we also learned today from her. Now the second question is, when life gives you lemons, then what will you do? I think life might have given you lemons. See, everybody gets lemons. True. But now, after so much of experience, I should say, we cannot survive without lemons also. See, if we don't get frictions in life, we don't get proceed. अगर हमें प्रोग्रेसिव रहना है, डेवलपमेंटल होना है, तो फिर हमें चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए. एंड चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उसे प्रोसेस करते हैं जब हम, that makes us one step ahead of what we were yesterday. True. So that makes me. तो आपने उन लेमन्स का लेमनेड बना के पिया है बहुत अच्छे से. बहुत अच्छे से. नहीं, मैंने पिकल्स भी बनाए हैं. Gujaratis are expert in making pickles. Now, the third question. There is something to admire in every beast. Can you elucidate it? Yes, I can, because when we come across with different kind of people, now people don't have beast living in the forest. We have beast inside in the Kali Yuga. हम खुद ही बीस्ट हैं. हम खुद ही बीस्ट हैं. हमारे अंदर एक बीस्ट भी है, एक डिवाइन पावर भी है. So what we have to do is we don't have to look and react to the beast. We don't need to react until and unless हम डिफेंसिव मोड पे है तो हमें जरूरत ही नहीं है उनको रिएक्ट करने की. Whatever we are doing is right, क्योंकि हमारा अगर परसेप्शन ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है, तो हमें जरूरत ही नहीं है बीस्ट साइड को देखने की. नहीं, मीन्स कोई भी हर एक इंसान में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होती है. हाँ. तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होगा इसमें? डेफिनेटली. जब मेरे पास चैलेंजिंग बच्चे आते हैं तब मुझे पेरेंट्स जरूर ऐसे बोलते हैं, और पेरेंट्स के साथ में भी ऐसा होता है कि वो ही इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं बच्चों को नेगेटिवली. तो एट स्पेसिफिक मोमेंट्स आई फेस इट ईच एंड एवरी डे, है ना. तो क्या होता है कि जब वो बीस्टली साइड या फिर यू कैन से टॉक्सिसिटी फेस करते हैं हम, तो आई जस्ट मेक थिक सेंटेंस एंड मेक माय ओन वे. वाओ. सो आज हमको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला. वो सिर्फ लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट कोच नहीं है, बहुत सारी चीजें हमको लाइफ से रिलेटेड इनसे सीखने को मिला है. एंड थैंक यू सो मच करिश्मा फॉर योर वंडरफुल रिप्लाईज. आई थिंक द ऑडियंस विच इज सिटिंग ओवर हियर, आपको भी इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. नाउ नेहा, इट्स योर टर्न. You don't have to. Why life is not always the same? Why there are challenges in life? क्यों है चैलेंजेस, क्यों है लाइफ में हमको, किस लिए आते हैं? चैलेंजेस हमारी लाइफ में इसलिए आते हैं ताकि हम बेटर पर्सन बन सके. हमें मालूम पड़ना चाहिए कि हम क्या थे और क्या हो सकते हैं. वेरी गुड. कुछ डिफिकल्टी आई, उसको फेस करने का हमको मालूम पड़ना चाहिए कि कैसे फेस करना चाहिए, उसके ऑप्शंस निकालने चाहिए एंड रास्ता निकालना चाहिए ताकि हम आगे
चल के मालूम पड़ सके, और किसी को अगर बोलना हो कि हमने ये फेस किया है, आप ये कर सकते हैं, वी कैन डू दैट आल्सो। ट्रू। लेकिन आप सोचो कि आप 15 इयर्स बैक जैसे थे और आज आप वैसे हैं क्या? I was a very silly girl. I didn't understand life as I'm understanding it right now. So these you have learned from these Yeah, I've learned obstacles. a lot. I've learned a lot. Now I can understand people. I can talk to them. I have started facing my own challenges. कुछ भी प्रॉब्लम आई तो मैं उसको फेस करके सॉल्व कर सकती हूँ अकेले। आई डोंट नीड एनीबॉडी टू सॉल्व माय प्रॉब्लम्स नाउ। तो वो सब सीखा है एंड आगे भी सीखते रहेंगे। तो आपके लिए मीन्स चैलेंजेस जो है लाइफ में वो हमारे लिए बेस्ट लेसन्स हैं। एग्जैक्टली। तो अभी अगर लाइफ में चैलेंजेस आते नहीं हैं चाहिए, सब नहीं अगर आते हैं समझते हैं तो पहले जो ये तो समझ के तो पहले जो फियर था वो अभी भी है चला क्या? गया है। वो चला गया। नाउ वी आर fearless. Now because you are in that acceptance mode. Exactly. You have Yeah, I've you accepted accepted life है, as it comes. right? And without any blame. Without any blame. I don't blame any people now. Very good. That's the main thing. Now the next question is, what advices would you give to your younger self? Younger self, I was happy as I was. 20 साल पहले अगर होते थे आप 20 साल पहले क्या खुद को क्या एडवाइस देते थे? क्या एडवाइस दे सकती हूँ मैं? आई शुड हैव टेकन केयर ऑफ माई सेल्फ बेटर। या मैं रिलेशनशिप्स में भी, किसी के साथ बात करने में भी, आई वुड हैव स्पोकन बेटर, आई वुड हैव डील्ड विद द मैटर्स बेटर। सो वर यू इंट्रोवर्ट बिफोर? Yeah, I was. I wouldn't speak to anybody, right? And now अब मुझे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ। पहले थोड़ी सोचना nervous पड़ता होती हूँ, था। पहले सोचना पड़ता था, अब बिल्कुल नहीं। Right. Now it comes to, is health your priority? Yeah, it is. I think it, मतलब कम सोचती हूँ, पर अब ऐसा जैसे मेरी एज बढ़ती जा रही है, मुझे लगता है कि नहीं, आई हैव टू थिंक फॉर इट, क्योंकि बाद में कोई आने नहीं वाला है मुझे उठाने के लिए। पहले नहीं थी हेल्थ आपकी प्रायोरिटी? मैं बहुत ज्यादा नहीं सोचती थी, जैसे चल रहा है चलने देती थी, पर अब एक चीज ऐसी आ जाती है ना कि सोचना पड़ता है कि व्हाट कैन आई डू, जिससे किसी और को भी प्रॉब्लम ना हो, मुझे भी प्रॉब्लम ना हो। Okay. Thank you so much. Thank you so much, Thank you. Neha and Karishma, for pouring your heart out with Pinky. Thank you so much, both of you. Thank you, Pinky, for giving us this opportunity, a big good platform. और मैं भी बेसिकली बड़ौदा की हूँ, तो मुझे भी आपके जैसे अच्छी गुजराती, इतनी तो अच्छी नहीं आती लेकिन आती है अच्छी गुजराती, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस गुजराती में पूछना चाहूंगी। हेलो गुजराती लेडीज, नाउ वी आर स्टार्टिंग अ गेम, ईदर यू हैव टू से इट और स्टिप इट। ओके, તમને બોલવું હોય તો બોલો, નહીં તો તમને જે કાઢીને આપવું હોય તો અહીંયા મૂકતા જાઓ। પછી તમે લઈ લો। ચપ્પલ, જૂતા, ચશ્મો જે પણ પહેરીને આવ્યા હશો, you can strip it off. Now, what do you mean by ચાંદલો માટલી? ચાંદો એટલે ચાંદલો માટલી માટલી मीन्स मटकी। क्या होता है? तो होल्स वाली मटकी नहीं, आपकी शादी के टाइम पे कुछ रिचुअल है चांदलो माटी, जो कुम्हार लेके आते हैं, वो 4 होते हैं, 7 होते हैं हमारे में। हाँ, और वो फिर किसी के घर पे रख कर आने पड़ते हैं। एक कुएं के पास एक कुम्हार इनको रिटर्न देते हैं इस तरह से। फिर भी आपने बोला है वो बहुत अच्छा स्ट्रिप ऑफ नहीं किया, अदरवाइज उसका मीनिंग है एक्सेप्टेंस। अच्छा, गौर धाना वो सारा जब हम रोका होता है वो एंगेजमेंट। इंग्लिश। मामेरू मामा लोग जो गिफ्ट देते हैं वो दोनों एक्सपर्ट है। एकी बेकी, एकी बेकी, आई डोंट नो। एकी बेकी एक ही नहीं क्या होता है? व्हाट इज एकी बेकी? एक ही बेकी, एक दो। नहीं, इट्स नॉट दैट। इट्स अ गेम आफ्टर मैरिज व्हिच वी प्ले इन दैट मिल्क में वो कॉइंस और ये सब डालते हैं। एकी बेकी। एंड हु इज द फादर ऑफ द नेशन? गांधी जी। गुजरात का इसके लिए पूछ रही हूँ। विच इज द टॉलेस्ट स्टैच्यू इन द वर्ल्ड? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और किसका स्टैच्यू है वहाँ पे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कया गाँव में छे? केवड़िया। वेरी गुड। Which type of sari you wear at the time of wedding? घर चोड़ा एंड पानेतर। Very good. What do you fantasize at this age? I want to freak out and I want to just look at the world alone. I do that. I don't want to go with anybody. Do you like junk or home food? Home food. Oh, yeah.
तो क्या खाते हैं आप? राजमा चावल, ढोकला, थेपला, हांडवा, Gujarati all these में missiles they have. All Gujaratis have these missiles. खिचू खिचू, लोचो, लोचो, लोचो। हांडवी, हांडवा, और गुजरात में एक फेमस फेस्टिवल कौन सा है? गरबा, गरबा। नवरात्रि। कितने दिन का रहता है वो? 9 days। तो आप जाते हैं गुजरात फिर आप खेलने के लिए वहाँ पे? जाते हैं जब टाइम मिलता है, अब यहाँ से कौन जाने देगा हमें। Are you a minimalist or hoarder? Minimalist। Does money really buy happiness? Yes। Yeah. Not money this. Who's sitting in front of Money does buy happiness, it's not always love and That depends what kind of happiness you want. Okay. But for me, of course, money doesn't buy happiness. So one is yes and the other one is no. Yeah. Okay, thank you so much for being here, for pouring your heart out with me. So our today's winner is बोलो। Neha Gaglani, thank you so much. who has come all the way from Gujarat. और इन्होंने अच्छा है, दोनों ने किसी ने कुछ स्ट्रिपिट नहीं किया है, सब आंसर्स के अच्छे से जवाब दिए हैं. So congratulations Neha and congratulations to you also Karishma. Thank you. This is a small hamper for you. Oh wow. Thank you. Thank you। Thank you for coming Yeah. Thank to this show and pouring your heart out. आइए. you so much for arranging.